हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपनी बहन आशी को आम दिया खाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो आम कहीं छुपा के रख दिया और वो भूल गई कि उसने कहाँ छुपाया था। 2 दिन बाद वो उसे याद आया कि मैंने उसको कोई आम दिया था। तो वो 2 दिन बाद वो वहाँ गई जहाँ उसने आम छुपाया था, और उसने क्या देखा कि वो आम सड़ चुके थे। लेकिन उसको तभी याद आया कि उसकी दादी जो आम का अचार बनाती हैं, वो तो नहीं सड़ते इतनी जल्दी। लेकिन उसका आम क्यों सड़ गया? वो दौड़ती हुई मेरे पास आई, बोली कि दीदी, एक बात बताइए कि मेरे आम क्यों सड़ गए और दादी के आम आम का अचार क्यों नहीं सड़ा? वो भी तो आम ही है, लेकिन वो नहीं सड़ा और मेरे आम सड़ गए। तो मैंने उससे बोला, चलो ये बात दादी से चल के पूछते हैं कि दादी, आपने अचार में ऐसा क्या मिलाया था कि अचार नहीं सड़ा और मेरे आम सड़ गए। तो हम दोनों दादी के पास गए। तो चल के दादी से जानते हैं इसका राज। ये इंसिडेंट सुनने के बाद आपके मन में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इज स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शन? ये वीडियो पूरा होने के बाद आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। So let's start with our topic, food preservation. There are two common methods of preserving food. First is chemical method and second one is physical method. In chemical method, there are three other methods. One is by preservative, second one is sugar and salt, and third one is oil and vinegar. Physical method, first is chilling and freezing, second is heat and cold treatment, and third is canning. So let's start with preservative. What are preservative? Preservative are chemicals which generally used to check the growth of microorganisms. Some example of preservative are sodium benzoate and sodium metabisulfite. हम सब लोगों को जैम और स्क्वैशेस दोनों बहुत पसंद है। तो आपको पता है कि जैम में क्या पड़ता है? उसे प्रिजर्व करने के लिए वी यूज सोडियम बेंजोएट टू प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। देन सेकेंड इज शुगर एंड सॉल्ट. Salt is common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Salt का यूज़ हम लोग बहुत सारी जगहों में करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, such like meat and fish, and for making pickles, preserve amla, tamarind, etc. And by using sugar, we preserves jam, jellies and squashes. Sugar आके करता क्या है? How do they preserve the food? Sugar reduces the moisture content, which inhibits the growth of bacteria which spoil food. So by sugar we preserve jams, jellies and squashes. Third one is preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. By this method we also preserve fruits. Then second one is physical method. In physical method, first we study about chilling and freezing. We all keep our food in the refrigerator because low temperature inhibits the growth of microbes. Why the low temperature inhibits the growth of microbes? Because the enzyme present in microbes require a certain temperature at which the enzyme work, but at low temperature they become they become useless for bacteria. Then second method is heat and cold treatment. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. So boiling kills many or microorganisms. Storage and packing. In these days, many things are come in sealed
airtight packets to prevent the attack of microbes. So this is scanning physical method. In chemical method, first one is preservative, second one is sugar and salt, third one is oil and vinegar. And in physical method, we study chilling and freezing. And second one is heat and cold treatment. And third one is canning. Let's answer my one question. कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है कि जो पैकेट वाले मिल्क हैं वो क्यों खराब नहीं होते? क्योंकि उनको पास्चराइज किया जाता है. तो what is pasteurization? Pasteurization is a process in which milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. So it prevents the growth of microbes, and this process is called pasteurization. And you know who discovered the pasteurization? Louis Pasteur. Yes, the same man who discovered the fermentation, he also discovered the pasteurization. Next topic is classification of disease. तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम ये जान लें हाउ माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर अस. सो माइक्रोब्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. Some of microorganisms causes disease in human beings, plants and animals. And these type of microorganisms which causes disease are called pathogens. And some microorganisms spoil food, clothing and life. Now we study classification of disease. On the basis of transmission, disease is classified into two groups. First one is non-communicable diseases and second one is communicable diseases. So start with non-communicable diseases. Non-communicable diseases are those diseases which do not spread from one person to another. For example, heart attack and asthma. And second group is communicable disease. Communicable disease are those diseases which spread from one person to another. The best example अभी के टाइम पे जो चल रहा है COVID-19, and the virus which is responsible for COVID-19 is coronavirus. So let's talk about communicable diseases, how they spread, how they transmit from one person to another, what are the diseases which are coming under the communicable disease. So communicable disease can transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Remember, बचपन में जब हमें खांसी या जुकाम होता था तो हमारी मम्मी क्या बोलती थी कि मुंह पे हाथ रख के खांसो, because the cold and cough is also a communicable disease. It is spread from infected person to healthy person. Let's take example of communicable disease which is spread by कैरियर्स. तो कैरियर्स कौन होते हैं? कैरियर इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मक्खी, हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई कहीं भी कचड़े में जाके बैठती है और वो आपके घर में आ जाती है, आपके खाने पे बैठती है. तो ये क्या हुई? कैरियर हुई. वो उस कचड़े से माइक्रोब्स लेके और आपके खाने में डाल रही है और आप बीमार पड़ रहे हो. ये क्या हुआ? मक्खी क्या हुई? कैरियर. और ये जो आपको डिसीज होगा उस खाने को खाने के बाद वो क्या होगा? कम्युनिकेबल डिसीज. और इसीलिए कहते हैं कि खाने को ढक के रखो, कि बाहर का खाना मत खाओ, बिना ढका हुआ खाना मत खाओ. ये तो अपना पहला एग्जाम्पल हो गया, हाउस फ्लाई. एंड सेकंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज female Anopheles mosquito, which is a carrier of malaria parasite Plasmodium. तो मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है. मलेरिया क्यों होता है? मलेरिया उसी मच्छर के काटने से होगा जो जिसके पास क्या होगा? मलेरिया पैरासाइट.
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। एंड फीमेल एडीज mosquito act as a carrier of dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? ये हमारे टीचर्स भी बोलते थे, आपके भी टीचर बोलते हैं और सबके टीचर्स यही बोलते थे कि वो हमेशा ये क्यों बोलते रहते थे कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, अपने आसपास सफाई रखें, ऐसा क्यों बोलते हैं? और पानी कहाँ कहाँ इकट्ठा हो सकता है? एनीवेयर, इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. So let's start with some communicable diseases example. First one is tuberculosis. Tuberculosis is caused by bacteria and its mode of transmission is air. Measles. Measles is caused by virus and its mode of transmission is air. And third one is chicken pox. Causative microorganism is virus and mode of transmission is air or direct contact. And fourth one is polio. Causative microorganism is virus and mode of transmission is air or water. Then comes cholera and typhoid. Cholera and typhoid both are caused by bacteria and its mode of transmission is water or food. Water and food, which is contaminated by the bacteria. Then comes hepatitis A, which is caused by virus and its mode of transmission is water. And then malaria, which is caused by protozoa and its mode of transmission is mosquito. So there are three ways of spreading disease. First one is from infected person through air, water, food and physical contact. And second one is through insects and animals, which is which are also known as carriers. And third one is through contaminated food and water. From infected person through air, water, food and physical contact, example is common cold. Through insects and animal, example is malaria by anopheles mosquito, dengue by aedes mosquito. And by animals, for example rabies, dog, monkey and rat bite fever by rat. Through contaminated food and water, the most common example is food poisoning. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स केवल ह्यूमन बीइंग को ही हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, वो दूसरे एनिमल्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड सेकेंड वन इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। इन एनिमल्स, some example of disease causing microorganisms are bacteria, virus and fungi, and the diseases are anthrax, foot and mouth disease and ringworm. And in plants, diseases are citrus canker. It is caused by bacteria and its mode of transmission is air. Second one is rust of wheat, which is caused by a fungi and its mode of transmission is air and seeds. Third one is yellow vein mosaic of bhindi, which is caused by a microorganism virus and its mode of transmission is insect. Let's start with another topic, nitrogen cycle. So before we start the nitrogen cycle, we have some idea about nitrogen fixation. क्लास 6 और 7 में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा, जो कि एक बैक्टीरिया है और वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हैं? पल्सेस एंड बीन्स। लेग्यूमिनस प्लांट, आखिर क्यों बस लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं?
क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को जो कंप्लीट करता है वो कौन है, वो राइजोबियम है। राइजोबियम जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, उसको नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट करता है एंड देन उसका यूज़ करके उसको प्लांट क्या करते हैं, यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं विच इज़ रिच प्रोटीन। तो ये रिलेशन क्या हो गया, और बदले में जो प्लांट्स हैं वो क्या देते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया उनसे अपना खाना। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा है, बैक्टीरिया प्लांट्स की मदद कर रहा है और प्लांट्स बैक्टीरिया की मदद कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को बैक्टीरिया फिक्स करके सॉइल में ला रहा है और प्लांट्स उस नाइट्रोजन को ले रहे हैं, तो फिर एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कम क्यों नहीं हो रहा। नाइट्रोजन तो 78% का 78% ही रह रहा है। तो उसका जवाब मिलेगा हमें नाइट्रोजन साइकिल पर। तो चलो शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसा कि आप सबको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किस किस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। These all things are constitute of नाइट्रोजन। लेकिन दिक्कत ये है कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो प्लांट्स और एनिमल डायरेक्ट नहीं ले सकते। हम डायरेक्ट ऑक्सीजन तो ले सकते हैं लेकिन हम नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर, तो इसीलिए कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, सॉइल में फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स इनको अपने रूट से एब्जॉर्ब कर लेंगे और एनिमल्स के पास कैसे पहुंचेगा, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट को ही तो खाते हैं। तो इससे क्या होगा कि एनिमल के पास भी पहुंच जाएगा और प्लांट के पास भी पहुंच जाएगा, और जब ये नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स के पास पहुंचेगा तो इसका यूज़ क्या करेंगे, वो इसका यूज़ करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आप सोच रहे होंगे लेकिन वो क्वेश्चन तो अभी वहीं का वहीं रह गया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो कैसे कांस्टेंट है। तो जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो ये जाएंगे कहाँ, हवा में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो ज़मीन में ही, सॉइल में जाएंगे। तो जो सॉइल में बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट हैं वो उन जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको डिग्रेड करेंगे। तो जब वो डिग्रेड करेंगे तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजनस कंपाउंड में और फिर से उसको प्लांट और एनिमल यूज़ कर लेंगे। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट। देयर आर 4 steps in the nitrogen cycle. First one is nitrogen fixation, second one is nitrification, third one is denitrification. So let's start with the cycle. How the cycle complete. तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके। फिर क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स किया सॉइल में। फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया, और वो कंपाउंड क्या होंगे, अमोनिया हो। और अब ये कंपाउंड कहाँ आ गए, ये कंपाउंड आ गए सॉइल में। अब इस कंपाउंड को बैक्टीरिया या तो इस नाइट्रोजन कंपाउंड को
डायरेक्ट नाइट्रोजन में गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में फिर से भेज देगा, या फिर ये या क्या होगा कि ये कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर इस कंपाउंड्स को प्लांट अब्जॉर्ब कर लिए तो प्लांट को एनिमल खाएगा, और फिर जब एनिमल की डेथ होगी या प्लांट की डेथ होगी तो ये नाइट्रोजन वेस्ट सॉइल में फिर से आ जाएगा, और फिर से बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, या तो नाइट्रोजन कंपाउंड चेंज करेगा या फिर इसको डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देगा। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग से भी फिक्स होती है। जब भी कभी लाइटनिंग होती है तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स हो जाती है। देयर आर टू मेथड्स। पहला है कि बाय बाय द लाइटनिंग और बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो ये अपना कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन साइकिल। सम फैक्ट्स अबाउट बैक्टीरिया। Bacteria have lived on the earth for much longer than human beings. They are such hardy organisms that they can live under extreme conditions. They have been found living in boiling mud pots and extremely cold icy waters. They have been found in lakes of caustic soda and pools of concentrated sulfuric acid. They can survive at depth of several kilometers. They probably can survive in space too. A kind of bacterium was recovered from camera which stood on the moon for 2 years. There is probably no environment in which bacteria can't. So let's summarize this chapter quickly. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, पाए कहाँ जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि माइक्रोब्स और ह्यूमंस का रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन के बेसिस पे हमने माइक्रोब्स के यूजेस पढ़ लिए, उनसे होने वाले डिसीज पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ लिया फूड प्रिजर्वेशन, और फिर हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पे पूरा होता है हमारा ये लेक्चर या फिर ये पूरा चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय।